Hi friends, I am CA Mukesh Bansal. Today I am here to share my knowledge on capital market and how to manage the risk that is associated in capital market. First of all, to understand the basic concept of capital market. What is a capital market? Why the people invest in capital market? Basically capital market is a market where the buyers and sellers engage in the trade of financial securities like bonds, stocks, etc. So if any person has to buy the shares or bonds or any other type of security, he has to access a capital market. Capital market can be accessed by different participants. These can be in the form of individuals, like today's scenario, the participation of retail investors, or we can say the individuals, has exceeded manifold. Or it can be the institutions like LIC or other financial institutions or mutual funds, and foreign institutional investors also. And the transactions which are taken in the capital market are through some medium, that is the stock exchange. We are having very popular exchange like NSE, National Stock Exchange, and BSE, Bombay Stock Exchange, for the transaction. So first of all, if any person has to access the capital market, he has to access through the stock exchange. Generally, the capital market deals with long-term funds. Long-term means more than 1 year, 2 year, 3 year, like that. The funds can be, the instruments can be in the form of equity shares or bonds, etc. And it depends entirely on the risk profile of the investor. Say if there is an investor, his risk profile is very risk averse, that is he don't want to take much risk, he can go for bonds. अगर उसे कोई फिक्स रिटर्न चाहिए, then he can go for bonds. But if he wants to have some lucrative returns and some he can have the some risk, then he can go for equity, etc. But entire thing depends on the risk return profile of investor. Why do a person invest? It is always said, whatever you earn, whatever is your age, irrespective of age, you have to save out of that. जितना भी आप अर्न करते हैं उसमें से कुछ परसेंट आपको सेविंग करनी चाहिए. अगर सपोज को आपकी वट एवर इज योर इनकम, एटलीस्ट इट इज़ आइडली सेड 20 to 30% शुड बी सेव्ड. वट इज द मोटिवेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली कोई पर्सन क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? फॉर हिज फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर नीड्स ऑफ मनी. whenever we go to invest, हमेशा क्या होता है जब भी आप इन्वेस्ट करने सोचते हैं, देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज. यू कैन गो फॉर सम फिक्स रिटर्न्स लाइक एफडीज, बैंक एफडीज, और बॉन्ड्स और इक्विटीज़. अब ये कैसे डिसाइड हो वेदर आई हैव टू गो फॉर इक्विटी और आई हैव टू गो फॉर फिक्स एफडीज और आई हैव टू गो फॉर बॉन्ड्स? इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर रिस्क एपिटाइट. If we want to have no risk, then no higher return can be there. That is, we can have only the risk-free return. Basically, the market gives risk-free return, that is the government securities return, or we can say bank FDs. If you want to have some extra return, you have to bear some risk. अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए, हायर रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा. सो वी कैन से द रिस्क एंड रिटर्न्स आर एसोसिएटेड टू ईच अदर. जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलेगी. बट सबसे इंपॉर्टेंट ये हर इंसान ये कोशिश करता है मेरी रिटर्न ज़्यादा हो. एवरी पर्सन ट्राइज टू इंक्रीज हिज रिटर्न, बट इन द एट द सेम टाइम ही हैज़ टू मैनेज द रिस्क. ऐसा ना हो कि मैं रिटर्न तो मैंने मैक्सिमाइज करने के चक्कर में अपने रिस्क को ही मैक्सिमाइज कर लूँ. सो द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दैट where the risk is minimized but the return is maximized. So each and every person try to achieve that. So the motivation for investment is in particularly in capital market or equity is the return that is higher than the risk free return. How to measure the return? Return को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is simply just like a profit. If we want to calculate the profit on investment, what we do, we have to see the initial capital contributed, and we have to compare it with the returns that is between the period, like in the form of dividend or interest, and then the maturity value at the time of sell. So we can say the return is the sum of maturity value plus returns in the form of interest and dividend minus the initial investment.
जो भी आपको इनफ्लो होता है मैच्योरिटी या सेल के टाइम पे, प्लस ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में, माइनस जितना आपने इनिशियली कंट्रीब्यूट किया था, अगर उसे माइनस कर दें तो वो आपकी एब्सोल्यूट रिटर्न है। अगर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है देन हम क्या करेंगे, इट विल बी डिवाइडेड बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, देन इट विल बी ए परसेंटेज। तो बेसिकली रिटर्न इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड वट एवर वी गेट इन रिटर्न ऑफ दैट। रिस्क, रिस्क क्या होता है? रिस्क इज बेसिकली द अनसर्टेनिटी इन वन और मोर फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब किसी भी इन्वेस्टमेंट के किसी एक फैक्टर में कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है, दैट इज अ रिस्क। लाइक रिटर्न्स कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी या नहीं होगी, या रिपेमेंट में पैसा मिलेगा वापस या नहीं मिलेगा। जैसे अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इट इज़ श्योर कि अगर हमने इन्वेस्ट किया है तो कुछ रिटर्न आएगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी कैपिटल है वो भी कुछ कम हो जाए। तो रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपको डिविडेंड मिल गया तो वो रिटर्न है, बल्कि जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है और जो अल्टीमेट है वो। तो व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट द रिस्क, रिस्क इज कैलकुलेटेड एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ the events of the factors. रिस्क में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। रिस्क जो होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। सम रिस्क कैन बी अवॉइडेड, सम कैन नॉट बी अवॉइडेड, विच इज इनहेरेंट इन सिस्टम। वी आर सीइंग सम एग्जांपल्स, देयर कैन बी मैनी रीजंस ऑफ रिस्क, लाइक से आरबीआई एंड बैंक रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। अगर आरबीआई ने या सेंट्रल बैंकर्स ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया या बढ़ा दिया, इफ़ दे इज़ ए वॉर लाइक इन द प्रेजेंट केस आल्सो, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया लाइक दैट, तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा? या इंडिया का जीडीपी एक्सेप्शनली अच्छे रेट से ग्रो हो गया या कम रेट से ग्रो हुआ, या कुछ वर्किंग डेज लेबर स्ट्राइक की वजह से कंपनी के लॉस्ट हो गए, कंपनी के जो प्रोडक्ट थे उसकी सेल ज़्यादा या कम हुई, या कंपनी का सीईओ चेंज हो गया। तो नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें से कौन कौन से रिस्क किस टाइप के हैं? इफ़ वी सी देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक रीजन की वजह से हैं, जो पूरी इकॉनमी में या पूरे नेशन के ऊपर हैं या पूरे वर्ल्ड के ऊपर हैं। कुछ रिस्क ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी को रिलेट करते हैं। ऐसे रिस्क जो किसी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हैं, पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, दे आर कॉल्ड एज अनसिस्टमेटिक रिस्क। दैट द रिस्क विच आर not existing in the system but which are specific to a company. ऐसे रिस्क जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हैं, दैट आर द सिस्टमेटिक रिस्क, दैट इज द रिस्क विच एग्जिस्ट इन द सिस्टम इटसेल्फ। अगर हम एग्जांपल देखते हैं अपना, तो इसमें जो फर्स्ट रिस्क था दैट इज आरबीआई एंड बैंक रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, इसका जो इम्पैक्ट होगा किसी एक कंपनी पे नहीं होगा, इट विल बी द सेक्टर स्पेसिफिक और द एंटायर मार्केट। तो दिस इज macroeconomic, that is systematic risk. The war, systematic risk. GDP of India, again systematic risk. But if we see some working days were lost by labor strike, companies products sold higher or much better, the CEO of the company has been changed, ये जो रीज़न है ये कंपनी स्पेसिफिक है। जब भी कोई कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होगा, दैट विल बी द सिस्टमेटिक रिस्क। नाउ द क्वेश्चन राइज, हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि रिस्क है, ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वो सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है। नाउ द क्वेश्चन राइज कि हम इन रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर सिस्टमेटिक रिस्क है उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको कैसे करते हैं। फर्स्ट वी टॉक ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क। एज वी सेड अर्लियर, अभी जैसा हमने कहा था, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो ऐसा रिस्क है जो किसी कंपनी के लिए स्पेसिफिक है, बाकी कंपनीज के लिए नहीं है। एक्चुअली अगर हम कैपिटल मार्केट को ध्यान से समझें, देयर इज़ अ एंटायर मार्केट, उस मार्केट में डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है। हम उन कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं, लाइक बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री, लाइक दैट। इसी टाइप से फिर उन सेक्टर्स में कंपनी आती है। अगर हम बैंकिंग में आते हैं तो प्राइवेट बैंक्स और गवर्नमेंट बैंक, दैट इज़ PSUs। अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तब भी गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर आईटी सेक्टर में है तो इंडियन और एज वेल एज ग्लोबल। तो हमें ये देखना होगा कि अगर मुझे अनसिस्टमेटिक रिस्क को मिनिमाइज करना है तो इसका सबसे सिंपल और फंडामेंटल प्रिंसिपल है, आई हैव टू डाइवर्सिफाई। मुझे अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन इज़ द बेस्ट टूल टू मिनिमाइज द रिस्क। अगर मुझे अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है
तो डाइवर्सिफिकेशन से अच्छा कोई मेथड नहीं होता टू अवॉइड द सिस्टमेटिक रिस्क। अगर मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट किसी एक कंपनी में लगाया और से उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो देयर आर मोर चांसेस ऑफ रिस्क। बट इफ आई हैव डिवाइडेड माई इन्वेस्टमेंट इन सो मैनी कंपनीज, but it does not mean you are having 60-70 companies. It is ideally said that you should invest in 10 to 20 companies. कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो रखते हैं अपना, तो पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि वो 60-100 कंपनीज में हो, रादर इट शुड बी स्प्रेड ओवर आइडियली 10 to 20, 20 to 25 कंपनीज। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द टूल बाय विच यू कैन अवॉइड द सिस्टमेटिक रिस्क। This is the first risk that we can avoid. Second is unsystematic risk. How the systematic risk can be avoided? Unsystematic risk can be avoided by diversification. अगर हम डाइवर्सिफाई करते हैं फर्स्ट अक्रॉस द कंपनीज विद इन द सेक्टर। अगर मुझे बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है तो कुछ मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में, कुछ मैंने प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट किया, नॉट इन वन सिंगल बैंक बट डिफरेंट बैंक्स। या अगर मुझे आईटी में ही इन्वेस्ट करना है, कुछ मैंने आईटी की ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो ग्लोबल बेसिस पे ऑपरेट करती हैं, कुछ ऐसी जो इंडिजिनियस बेसिस पे ऑपरेट करती हैं, सो डैट की रिस्क कैन बी मिनिमाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो फॉर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन विद इन सेक्टर, देन वी कैन गो फॉर सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कुछ पैसा मैंने आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया, कुछ बैंकिंग में किया, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में किया, एंड कुछ ऐसी कंपनीज जो अदर टाइप की है। इफ़ यू सी, जब भी कोई इवेंट होता है तो हर इवेंट से कुछ कंपनीज को बेनिफिट होगा, कुछ को लॉस होता है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होगा डिफरेंट सेक्टर्स में, तो आपके जो प्रॉफिट या लॉस हैं ओवर अ पीरियड वो अपने आप ही मैनेज होते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रशिया और यूक्रेन का वार था, तो उसमें सबसे पहला जो रिस्क आया था दैट वाज ऑन फाइनेंशियल सेक्टर, लेकिन उसके जो बेनिफिशियरी थे अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसी कंपनीज उसके रशिया या यूक्रेन के बेसिकली वॉर से जो ऑयल के रेट हैं, क्रूड ऑयल के और जो गैस है, एनर्जी, दैट वी शुड से एनर्जी, तो ऐसी कंपनी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं लाइक ONGC, लाइक रिलायंस, तो ऐसी कंपनी जो ऑयल एक्सप्लोर करती हैं, गैस एक्सप्लोर करती हैं, उनके प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ गए। तो इफ़ वी आर हैविंग सम लॉस इन वन सेक्टर लाइक बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, देन वी शैल बी हैविंग सम प्रॉफिट इन other sector. So this is why it is always said that the diversification is the best tool of minimizing the risk. Second is asset allocation. Diversification के साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, we have to allocate our assets into different type of इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन या किसी पर्सन के लिए सजेस्टेड है कि वो अपना सारा का सारा मनी केवल इक्विटी में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। रादर ही शुड मेक सम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स दैट इज इक्विटी, सम पार्ट इन बॉन्ड्स